A very good morning to respected Principal Ma'am, our eminent speaker, faculty members, and all our dear students. I, Suparna, from the Department of History, extend a very warm welcome to all of you present here for the webinar on the topic Relevance of Gandhian Framework in Present Scenario. Simplest was his life, unimaginable were his dreams, awakened the slumbered souls, thundered the colonial rule with Satya and Ahimsa. Yes, I am talking about a divine soul in a human frame, Mahatma Gandhi, a gentle personality who shook the world with his gentle ways. Martin Luther King once said, Jesus showed the idea, but Gandhi gave us the method. So today, on this Martyrs' Day, that is 30th January, we are here to pay respect to our father of the nation on his 73rd death anniversary. So now I would request our head of the history department, Dr. Asha Kiran, to extend a formal welcome and introduction of the eminent speaker of the day. Over to Dr. Asha Kiran. Namaskar and good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Postgraduate Government College, Sector 11, Chandigarh. My name is Dr. Asha Kiran, presently in charge of the Postgraduate Department of History. Today, we are commemorating one of the greatest leader of our time, Shri Mohan Das Karamchand Gandhi ji, through a webinar. And so, it is with warm and great regards that I welcome our Honorable Principal Ma'am, Dr. Sangam Datta ji, the most eminent Dean College Instructions, Dr. Anil Kumar Mankotia ji, esteemed Vice Principal, Dr. Renu Trikha ji, members of the departments of the faculties, and most importantly, the students of all the colleges. And a most special welcome, our guest speaker, Dr. Manoj Kumar ji from Postgraduate Government College for Girls, Sector 11, Chandigarh, who will be delivering a lecture on the topic Relevance of Gandhian Framework in the Present Scenario. Well, now I would like to mention the scholarly achievements of Dr. Sangam Datta. She is a doctorate in commerce. She has written more than 30 books on the subject of commerce and is a remarkable academic. She has edited, chaired many national, international seminars. She was invited to deliver a lecture on corporate social responsibility in United States of America. She also contributes as a member on the Postgraduate Board of Studies, Punjab University, Chandigarh. Recently, decisions were made by the Chandigarh Administration Board to commemorate the important historical days in the educational institutions. Now, I'm going to talk about the theme of the webinar. Gandhiji, the iconic figure in the country's freedom struggle, gave people of India the vision and confidence that they can defeat the colonial power through peaceful means. इसीलिए अक्सर हम बचपन में सुनते थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. He amassed people together and led the movement of freedom struggle. Today is 30th January 2021 and this day is marked as Martyrs' Day. So, the Postgraduate Department of History is paying tribute to the father of the nation under the proficient guidance of our principal, Dr. Sangam Datta ji. Now, I would like to invite the principal for the inaugural address to the students, faculties of the Postgraduate Government College, Sector 11. Over to Principal Ma'am.
Hello, can you hear me, Asha? Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Okay, good morning to everyone. So starting with this webinar, and it gives me a great pleasure and satisfaction also to inaugurate today's webinar on the relevance of Gandhian framework in the present scenario to mark the Martyr Day, which is being observed to commemorate Mahatma Gandhi's death anniversary. Gandhiji is admired all over the world, and as one of the history's most transformative and inspirational leader. He touched all walks of life with his indomitable adherence to great principles of truth and nonviolence. He will always stay in our memory as a visionary who personified humanism and worked tirelessly for the upliftment of downtrodden. I join the nation in saluting the father of nation on his 73rd death anniversary. I congratulate the PG Department of History for organizing today's webinar on a very pertinent and befitting topic of Gandhian framework relevance in present scenario. I accord warm welcome to key speaker Dr. Manoj Kumar, Associate Professor in the Department of Sociology at PGGCG 11 Chandigarh. His voluminous profile and scholastic acumen would definitely benefit all the participants in today's webinar, and I'm happy to welcome researchers, scholars, students, and teachers. Also, now let us pay homage to the epitome of peace and non-violence, Mahatma Gandhiji, by comprehending its ideology and resolving to imbibe Gandhian values. Now let's all join to salute great crusader of humanity, our Bapuji Mahatma Gandhi. Jai Hind. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Ma'am, we are really privileged to have you at the helm of affairs as a person of lofty ideas whose vision, knowledge, and wisdom is beyond words. Thank you so much, ma'am. So now I would request our head of the history department, Dr. Asha Kiran, to invite the eminent expert, Dr. Manoj Kumar, to enlighten us with his valuable views and thoughts. So again, over to Madam Asha Kiran. Thank you, Swarna ma'am. Dr. Manoj Kumar, an associate professor in the Department of Sociology at Postgraduate Government College for Girls, Sector 11, Chandigarh. Dr. Manoj Kumar is a sociologist by his renowned profession. He has made particular contributions in various social services in current government programs like Unnat Bharat, Swachh Bharat. In this, he shows his exemplary way of treading the path shown by Gandhiji. And so, today, Dr. Manoj Kumar will be delivering a lecture on the relevance on the Gandhian framework in the present scenario. So now, I invite Dr. Manoj Kumar to deliver his given topic. Sir. Okay. Sir, may I interrupt you? Sir, your voice is not audible actually. Okay. Thank you, Madam Principal, Asha Madam Ji, the Chetan and other colleagues from the History Department and colleagues from
different colleges and my students also. So the day is very important as stated by Principal Madam and Asha Madam. And it is very difficult to summarize Gandhi's contribution in limited time. He has written in volumes. Volumes have been written on him, and discussion is still going on. But one thing that has continued for over the years, that his relevance has not gone. So because most of you are from the Department of History, I will not go into the details of certain facts, but focus on the academic and social relevance of Gandhiji. So when you talk about Gandhiji, we talk him as a man, Gandhi. We talk him as a theory called Gandhism, and then we have a Gandhian framework of thinking. As a man, you all know 2nd October was his birthday, 1869. Then he went to South Africa for his higher studies. He started some movements there and then shifted back to India in 1915. He joined Congress later on and led the country to various revolutions. And finally, after independence, on 30th January 48, he was shot at. So this is his life history as a man. He has gone as a man, but the other angle, that is Gandhism. Gandhism is still continuing. When you understand Gandhism, it is an ideology in which he talked about certain points, which I'll take up in the next course of my lecture. So Gandhism as an ideology is still continuing, and its relevance is being debated again and again. So Gandhism, when we always talk about its action part. There is another part of Gandhi's perspective, that is Gandhian frame of relevance. When I talk about Gandhian frame, I am talking from the academic angle. So when you talk of development, when you talk of New India, you also have a Gandhian frame of reference. So Gandhian frame is an academic aspect, and Gandhism is a political, social, and active aspects. So those two aspects are interlinked. So as I said, ideas are more important. People go, but the ideas live. When we talk about Gandhian framework, so I'll start with his two cardinal principles. Gandhiji always talked about truth and non-violence being the two sides of the same coin and the cardinal principles of his philosophy. For Gandhi, as written in his book, My Experiments with Truth, in his autobiography, for Gandhi, truth can be relative and it can be absolute. When an ordinary person tries to understand truth, he or she just focuses on whatever is visible to that person. Whatever his sight can take him, whatever his senses can tell him, but that is always a relative truth. So relative truths are always partial. We do not have a picture of what is absolute truth. So relative truths often lead us to distance ourselves from others. We feel we are different and other perspectives or other truths do not exist. But once we understand that the relative truths are only relative and there is one absolute truth, then our hatred for others, our distinctions for others, and our violence for others, all kinds of distinctions go. So Gandhi wanted that we should understand the absolute truth. For Gandhi, I'll quote, "My religion is based on truth and non-violence. And truth can be achieved only through non-violence." I believe there are students, so I'll mix Hindi also for their benefit. So गांधी जी सच्चाई को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते थे
और ये मानते थे कि जब हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ पता चल जाएगा तो हम अपने आप ही नॉन वायलेंट हो जाएंगे। तो सारी सर्च जो उनकी थी वो सच्चाई को जानने की थी। तो इन हिज बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ही एक्सप्लेन्स हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू फाइंड द ट्रुथ, what problems he faced, what lessons he learned, but it is an honest confession. His biography is considered one of the honest confession, where we know Gandhi ji told कि मैंने चोरी भी करी, मैंने सिगरेट भी पी, मैंने और भी कुछ गलत काम करे, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स करता गया और फिर मैंने एस्टेब्लिश किया जो मैं बन गया। So during all these years of his struggle, he continued his journey for the truth. क्योंकि उनके लिए truth was God. And as I told, Gandhism takes into account, or Gandhian framework per se takes into account social, spiritual, economic, education, familial, moral, ethical, all dimensions of life. And as he himself said, spirituality or spiritual angle was the most important to him. जब वो spirituality की बात करते हैं, truth की बात करते हैं, then I find there is another quote from him. I have known no distinction between relatives and strangers, countrymen and foreigners, white and colored, Hindus, Muslims, Parsis. And I may say I am incapable of making such distinctions. तो ये गांधी जी का क्रक्स था थिंकिंग का कि अगर हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान जाएंगे तो हम कोई भी डिस्टिंक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ इज गॉड, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज लव फॉर ऑल, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज फियरलेसनेस, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज फेथ। तो ये सारे कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आप ट्रुथ पे जाएंगे, सच्चाई पे चलेंगे तो आप नॉन वायलेंट हो जाएंगे। आप सच्चाई पे तभी चल पाओगे जब आप में फेथ होगा अपने आप पे, अपनी ट्रुथ के ऊपर, और फेथ होगा तो आपका फियर अपने आप खत्म हो जाएगा। व्हेन यू हैव नो फियर, किस तरह का फियर है? जान चली जाएगी, दोस्त छोड़ जाएंगे, सरकार हमें पसंद नहीं करेगी, हमें अवार्ड नहीं देगी, या लोग हमें एनकरेज नहीं करेंगे, ये सारे फियर होते हैं। But when you believe in your ideology, you have faith in yourself, and then you can take the lead towards your cherished goals. तो गांधी जी का जो ट्रुथ का प्रिंसिपल है उसको आगे बढ़ाते हुए गांधी जी का अगला जो मेन विचारधारा थी वो थी सत्याग्रह। गांधी जी ये मानते थे कि हम सच से किसी को आग्रह करेंगे और वो हमारी बात मान जाएगा, पर सत्याग्रह एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला सत्याग्रह होना चाहिए, उसमें मॉरल कन्विक्शन होनी चाहिए। जब हम अपनी आत्मा से दूसरे को पसंद करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं और उस पर फर्म रहते हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं, तो वो हमारी बात मानेगा। और सत्याग्रह के लिए सत्या की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे सत्या को लोग सत्या मान लें और हमारे सत्या के अनुसार चल पड़े, पर सत्या को बताने के लिए नॉन वायलेंट होना पड़ेगा। तो जब हम नॉन वायलेंट वे से हम सत्य को बताएंगे, तो गांधी जी का ये यकीन था कि जितनी हम मॉरली अपग्रेड हो जाएंगे, जितने हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारे सत्य का असर होगा ही होगा। और सत्याग्रह के बाद उन्होंने अगला जो कंसेप्ट दिया, मान लो कि आपने बहुत आग्रह किया, किसी ने पत्थर मारे, आपने फूल दे दिए, तो आज के समय में लोग कहते हैं कि जी गांधी जी का तरीका नहीं चलेगा, आप सबको प्यार करते रहो, लोग आपको प्यार ना करें, लोग आपकी बात ना सुने, सरकारें आपकी बात ना सुने, समाज आपकी बात ना सुने, तो फिर आप कैसे सत्य के ऊपर चल सकोगे? तो एकला चलो रे की तरह गांधी जी ने कहा कि सच के लिए, सच एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सत्याग्रह कैन नॉट स्टॉप, इफ यू डोंट गेट सक्सेस स्टिल यू कंटिन्यू। तो
मैं जब पढ़ रहा था गांधी जी को और हमको जब आप अमल में लाने की कोशिश करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि ये बंदे ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, जो हमने दिया था उसने वापस नहीं किया, तब क्या किया जाए। तो पेशेंस की एक लिमिट होती है, हमने बहुत कह दिया, लोग मान नहीं रहे हमारी बात। देन आई गो अपॉन द सेकेंड मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। वो क्या थी? नॉन कॉपरेशन। सत्याग्रह के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत प्योरिफिकेशन चाहिए, पर अगर आपके बार बार आग्रह करने पर भी कोई व्यक्ति आपकी विचारधारा से सहमत नहीं होता या आपकी बात नहीं मानता तो उसे नफरत नहीं करनी है, पर वो अगर नुकसान कर रहा है जनता का, आपका या समाज का, तो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना है। as he started non-cooperation movement. पर for Gandhi, means are as important as ends. नॉन कॉपरेट करके किसी को शर्मिंदा कर दिया, किसी को समझा दिया, वो आपकी तरफ आ गया, वो ठीक है, पर अगर वो नहीं आ रहा तो भी हम नॉन कॉपरेशन कंटिन्यू करेंगे बिना उस व्यक्ति से नफरत किए हुए, और कभी भी हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेज है। हमने पूरा जोर लगा लिया, हमने सत्याग्रह कर लिया, सत्याग्रह नहीं हो रहा, तो अब और पेशेंस चाहिए नॉन कॉपरेट करने के लिए, उनको उनके इरादों में सफल नहीं होने देने के लिए हमें नॉन कॉपरेशन की करना है। पर इस समय भी आपने एंड्स को इतना इंपॉर्टेंट, जितने एंड्स इंपॉर्टेंट है उतने मीन्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि चोरा चोरी के इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली। तीसरा जो मुख्य विचार गांधी जी ने रखा वो सिविल डिसोबीडियंस का है। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा हूं कि अगर हम सत्य पे चलते हैं तो हमें किस किस लेवल पे जाना पड़ता है। फॉर गांधी द लॉज ऑफ गॉड आर मच बिगर देन द लॉज ऑफ लैंड। इंसानियत का कानून जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों के बनाए गए कानून गलत भी हो सकते हैं। अगर गलत कानून है, आपने आग्रह किया, आपने नॉन कॉपरेट भी किया, फिर भी नहीं टूट रहे, तो गांधी जी ने कानून तोड़ के दिखा दिए। चंपारण सत्याग्रह के बाद साल्ट नमक का जो आंदोलन था वो एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे कानून तोड़े, पर जब भी कानून तोड़े ब्रिटिशनर से कभी नफरत नहीं करी और कभी भी अपना सच का, अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। सो सत्य और द ट्रुथ वाज द क्रक्स ऑफ गांधीयन फ्रेमवर्क। उसी से सारा सच को कैसे लागू करना है, आई हैव गिवन यू अ सीक्वेंस। When I read Gandhi more, the concept of Swaraj also stems from his truth, ideology of truth. तो गांधी जी कहते थे कि आप ट्रुथ पे चलते चलते अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब अपने ऊपर कंट्रोल हो गया, आपका अपने ऊपर राज हो गया, तो सब लोग ही स्वयं के ऊपर राज कर रहे हैं। जब सब लोग स्वयं के ऊपर राज कर रहे हैं तो वो जो सरकार बनेगी या वो समाज जो बनेगा वो स्वराज होगा, जिसको राम राज्य कहा गया। तो राम राज्य में सरकार मिनिमल पार्ट लेगी आपकी एक्टिविटीज में और कम से कम दखल देगी, और लोग अपने आप ही अच्छाई की तरफ जाएंगे, जिनको गांधी जी ने राम राज्य और स्वराज कहा। बट गांधीयन स्वराज was focused on giving more power to the people, to the Grameen. So when he talked about Swaraj, he focused on Grameen Swaraj. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं कि हम विलेजेस को डेवलप कर देंगे, हम शहरों को डेवलप कर देंगे, हम सारे इंडिया को ही विकसित कर देंगे और सारे लोगों को आत्मनिर्भर कर देंगे, तो ये आइडिया वहीं से आया कि हमें सबको आत्मनिर्भर करना है और गांव को विकसित करना है। तो गांव के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस था। तो गांधीयन फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट और गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वुडबुक ने एनालाइज किया गांधी एज एन आर्किस्ट। तो वो कहते हैं कि जैसे मार्क्स कहते थे सरकार बहुत वायलेंट हो सकती है तो हम सरकार को खत्म करेंगे, सरकार को, ऐसा गांधी जी का विचार नहीं था। कई जगह पे गांधी जी ने कहा है कि सरकार वायलेंस का एक सोर्स हो सकती है, पर कभी भी सरकार के खिलाफ
बहुत ज्यादा नहीं कहा उन्होंने. He wanted minimal government, but as the concept goes, आज की सरकार कहती है मैक्सिमम गवर्नेंस. तो सरकारें हेल्प करेंगी डेवलपमेंट के लिए, सरकारें विलेज को प्रोत्साहन देंगी, और आज का जो कंसेप्ट है विलेज स्मार्ट विलेजेस, तो किसी ने कहा कि स्मार्ट विलेजेस बनेंगे तो ही स्मार्ट सिटीज बनेंगे. तो गांधीयन कंसेप्ट इज स्टिल रेलेवेंट ऑफ स्वराज. जो स्टेट्स, सेंटर्स, पंचायत, और हम सब जानते हैं इट वाज गांधीयन आइडिया विच लेड टू द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एट द एंड. चाहे हमें बहुत सारे साल लग गए, पर आज पंचायत डेमोक्रेसी का हब बन चुकी है. पंचायत लेवल पे बहुत सारे फैसले होते हैं. तो गांधीयन फ्रेमवर्क का जो कोर प्रिंसिपल है स्वराज, इट स्टिल कंटिन्यूस. द अदर आइडिया ऑफ गांधी जी डेल्ट विथ सर्वोदय. So सर्वोदय means उदय, सबका उदय, सबका विकास. अगेन हमें आज की सरकार और आने वाली सरकारों में वो गांधी के प्रिंसिपल झलकते नजर आते हैं. ही टॉक्ड अबाउट सर्वोदय. सर्वोदय मतलब सबका विकास, और सब में आ जाते हैं पर्टिकुलरली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनका भी विकास. तो सर्वोदय से का हमें एक और फ्रेम नजर आता है जिसमें हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान. गांधीयन फ्रेमवर्क आज भी चल रहा है. मैं कुछ प्रोग्राम्स बता रहा हूं जिनमें गांधी जी का असर आज भी हमें नजर आ रहा है. तो जब आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, सबको शिक्षा दी जाए, तो आप सर्वोदय की तरफ ले जाते हो. जब आप सबको हेल्थ की बात करते हो, देयर इज अनदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कॉल्स अबाउट द अंशुमन भारत. So Anshuman Bharat talks about the health for all. So सर्वोदय सबकी हेल्थ, सबको एजुकेशन, सबको रोड, सबको नेटवर्क, सबको फैसिलिटीज की बात करती है. So Gandhian concept of सर्वोदय is still relevant today. उसी में से अंत्योदय निकला. हमें सबको याद है कि हमारी किताबों में एक टैलिस्मान लिखा होता था गांधी जी का, कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए तो सबसे जो वीक आदमी है उसको ध्यान में रखा जाए. सो गांधी हैड वीकेस्ट पीपल इन हिज माइंड व्हेन ही टॉक्ड अबाउट सर्वोदय. और आप सब जानते हो गांधीज आइडियाज ऑन इक्वालिटी, कैसे हरिजन को ऊपर उठाया, कैसे सबको बराबर बनाने की कोशिश करी. ही फॉट फॉर द माइनॉरिटीज. कई बार उनको गलत भी समझा गया, बट ही ऑलवेज फॉट फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वीकर पॉलिसीज, वीकर the law, the weaker sections and the disadvantaged sections of the society. When I talk about Gandhian framework, I cannot escape the idea of trusteeship. तो ट्रस्टीशिप एक बड़ा फ्रेमवर्क है कि देश में बड़े लोग, पूंजीपति वर्ग, पावरफुल लोग, उनको ये समझना चाहिए कि जो भी उनको धन मिला है वो उनका अपना नहीं है. जो भी उन्होंने कमाया है इसी सरकार, इसी देश में रह के इन्हीं लोगों से लिया है. तो सब लोगों से लिया गया है, धन उनके पास पहुंचा है. उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, हो सकती है उसमें सिस्टम की भी कमियां हो सकती हैं. पर अगर आपके पास धन ज्यादा है, अगर आपके पास फैसिलिटीज ज्यादा हैं, तो गांधी अपील टू द कॉन्शियस ऑफ द पीपल कि आप अपने आप को ट्रस्टी समझो, यहीं पे रह जाना है, यहाँ से जो लिया हुआ है. सो यू एक्ट एज एन ट्रस्टी. तो गांधी जी का ये जो ट्रस्टी वाला आइडिया है कि आप बिना अटैचमेंट के सब कुछ लोगों को दे दोगे जो भी आपके पास फालतू है, कम से कम जो फालतू है, सब नहीं तो वही आइडिया आज कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दुनिया के सामने है. सो कंपनियां CSR के नाम पे कुछ खर्च कर रही हैं, तो उनका गाइडिंग प्रिंसिपल गांधीयन कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप है. इट इज डिबेटेबल कि वो कितना होता है, कितना और होना चाहिए, लोगों को और ट्रस्टी होना चाहिए. और गांधी जी के इन्फ्लुएंस में विनोबा भावे ने जब भूदान मूवमेंट करी,
तो उसमें भी लोगों को समझाया गया, अमीर लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को, कि आप ट्रस्टी के रूप में काम करिए और ट्रस्टी के रूप में आप जितना चाहिए उतना यूज करिए, बाकी औरों में बांट दीजिए। सो ट्रस्टीशिप लीड्स अस टू अ काइंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। तो ये कहना कोई डिफरेंट नहीं होगा बात की गांधी जी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते थे। पर जब आप जैसे पहले डिस्कशन की, मार्क्स और गांधी में काफी इस मामले में फर्क था। मार्क्स एट सम टाइम्स सीम्स टू प्रोवोकेट वायलेंस आल्सो। तो गांधी जी शुरू से लेकर लास्ट तक नॉन वायलेंट तरीके से रहे। आज के लिए हमारे पास एक और बड़ा रेलेवेंट इशू है एजुकेशन का। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो कहा जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गांधीयन फ्रेमवर्क से नहीं निकली है। इट वाज गांधी हु टॉक्ड अबाउट बेसिक एजुकेशन, इट वाज गांधी हु टॉक्ड अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन। तो इंक्लूसिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल और एंगेजिंग। अगर ऐसी एजुकेशन बनानी है तो ही किसी के काम आएगी। वो एजुकेशन गांधी जी आल्सो अपोज्ड कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे दे और आपको मोरालिटी ना सिखाए और जो आपको बोर करे, जो सिर्फ नौकरी के लायक बनाए, आप में मानवता खत्म कर दे, ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। तो हम सब खुश हैं कि न्यू एजुकेशन गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ गांधीयन फ्रेमवर्क। एंड ये भी गांधी जी ने पहली बार प्रश्न उठाया था कि अपनी मदर टंग में लैंग्वेज देनी चाहिए, मदर टंग से प्यार होना चाहिए। और दुनिया में एक यूनेस्को की स्टडी कहती है कि 40% लोग ऐसे हैं जो मदर टंग में मदर लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं ले पा रहे। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन, और उसमें भी हमें गांधी जी का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। एक सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है। तो वी ऑल नो गांधी वाज द फर्स्ट लीडर हु ओपनली टुक फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सैनिटेशन। एक जगह पे मैंने पढ़ा है, गांधी जी ने कहा इंडिपेंडेंस से भी सैनिटेशन जरूरी है। सारा साफ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, सब लोग अच्छे व्यवहार से रहें और अच्छे सिटीजन बने। तो आज़ादी तो बाद में भी ले लेंगे, आज़ादी से भी पहले ये जरूरी है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि जिस देश में वो रह रहे हैं इसको गंदा नहीं करना और गार्बेज को डिस्पोजल करना है, किस तरीके से करना। गांधी हैड दैट वे। तो गांधी जी का जो विलेज का डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें उन्होंने बात करी है कि कैसे नेचुरल फोर्सेस को नेचुरल तरीके से हम यूज करके, गोबर को, गोमूत्र को कैसे हम यूज करके हम फायदा भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम सफाई भी कर सकते हैं। तो हम नेचुरल चीजें यूज करेंगे। और जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्लास्टिक की चीजें हैं वो आज भी हमारे लिए डिस्कशन होती है कि जितना हम नेचुरल चीजों को यूज करेंगे उतना गंद कम होगा, जितना हम अननेचुरल तरीके से प्लास्टिक एटसेट्रा इन चीजों को यूज करेंगे तो गंदगी फैलेगी। तो गांधी का फ्रेमवर्क ऑफ सैनिटेशन इज स्टिल रेलेवेंट। और गांधी जी ने सिर्फ ये कहा ही नहीं, ही प्रैक्टिस व्हाट ही सेड। तो आप सब जानते हो कि कैसे उन्होंने सफाई अभियान चलाए उस समय, और खुद टॉयलेट्स में घुस के खुद सफाई करी। और sanitation was the core of his mind. So today the Gandhian framework is being applied in the Sarv Shiksha Abhiyan, in the government strategies, or we are glad that it has become a mass movement. Sanitation के अलावा he talks about physical hygiene and physical well-being. Exercise करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए बॉडी का. And we know the naturopathy, the principle of naturopathy comes from Gandhi ji. So how the nature has to be integrated. और अगर हम नेचुरल तरीके से रहते हैं और नेचर के जो तरीके से अपनी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ज्यादा बीमार नहीं रह सकते, एंड वी विल हैव ए हेल्दी लाइफ. तो गांधी जी के बारे में जो भी मैं और कहूंगा उसमें सिर्फ एक बात बार बार कहूंगा कि गांधी जी ने जो भी कहा
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा मुझे लगा वो ही नेवर सेड कि हिज वर्ड्स आर फाइनल। विद्वता तो आपने देख ली है, मैंने सिर्फ कुछ तथ्यों की बात करी है, पर वो कहते थे इफ टू ऑफ हिज सेंटेंसेस कंट्राडिक्टेड ईच अदर प्लीज एक्सेप्ट द सेकंड वन एंड फॉरगेट द फर्स्ट वन। जो आज मैंने बात कही है, कुछ सालों बाद मैंने सीख लिया है, तो वो मेरी बात पिछली भूल जानी चाहिए, मैं खुद भी भूल जाऊंगा। और जरूरी नहीं है कि जो पहले कही है वही बात ठीक हो, देयर इज ऑलवेज कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। तो हर दिन वो सीखते थे, हर दिन वो नई बात करते थे, और उनको शायद लगता था कि जो रिजिड कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कंसिस्टेंसी है थॉट की। महान लोगों के बारे में यही कहा जाता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। जिस दिन उनको जो ठीक लगता है वो बोलते हैं, अगले दिन वो सीख लेते हैं, फिर वो कुछ और बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि आदमी बदल गया। बट ही डिड नॉट appreciate the consistency at the cost of not learning. Learning and growth mindset in anticipation of followers' needs has to be continued. So naturally grow करना चाहिए, जितना हो सके ग्रो करना चाहिए, जितना सीखना चाहिए सीखते रहना चाहिए। ये गांधी जी का कोर प्रिंसिपल था। और सब जगह पे हम देखते हैं गांधी जी का एक कोटेशन, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मैं एक और गांधी जी के फ्रेमवर्क की रेलेवेंस की बात बताना चाहूंगा कि एक तो ये लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अच्छा लीडर बनना है, गांधी जी ने जो टैलिस्मान दिया, आई विल रीड फॉर यू, एंड इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। तो गांधीयन फ्रेमवर्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। व्हेन आई रीड अबाउट लीडर्स, व्हाट ही सेड, एन एंड्यूरिंग लीडर इज नॉट ए सुपीरियर पर्सन बट ओनली फर्स्ट अमंग इक्वल्स, first to stand by the moral code of conduct, first to bear the brunt of change, first to surrender privileges, and first to sacrifice one's life. A leader is elected, chosen to serve, and not installed to rule. तो आज के समय भी गांधी की ये जो लीडरशिप की डेफिनेशन है, ये हमारे लिए बड़ी रेलेवेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लीडर सोचता है कि वो महान हो गया और ये सारे मेरे सब्जेक्ट हो गए। तो लीडर्स आर नॉट द रूलर्स, दे हैव टू बी डाउन ट्रोडर, एंड ही एग्जाम्पलीफाइड इन हिज टीचिंग्स एंड प्रीचिंग। सारी जिंदगी गांधी जी ने जहां पे गलत किया उसको मान लिया। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स. I cannot include everything he said in this small lecture, but I will re-emphasize on certain basic principles of his preachings. कुल मिला के चोरी नहीं करना. I had a paper with me. ज्यादा नहीं खाना, नेचुरल रहना है, झूठ नहीं बोलना और पे खड़े रहना। ये कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे जो हमारे लिए आज भी इंपॉर्टेंट है। तो विद दीज वर्ड्स आई एक्सपेक्ट आई हैव कवर्ड द मेजर पोर्शंस। तो जब हम एकेडमिक्स में बात करते हैं तो हमेशा गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, तो थोड़ा सा मैं इसका क्रिटिसिज्म जो होता है उसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं from the Gandhian perspectives. Of course, these things have been discussed and debated in your books and all that. तो जो गांधी जी का डेवलपमेंट का मॉडल है जिसमें पावर ज्यादा देनी है विलेजेस को, इस पे बहुत डिबेट होती है दुनिया भर में। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इज द रूल। हम देखते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पावर नहीं देती, राज्य सरकार विलेजेस को पावर नहीं देते, और विलेजेस जो हैं वो आम लोगों को पावर नहीं देते। सो व्हेन यू टॉक ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, थिंग्स आर प्रेटी क्लियर। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर स्टेट और इंडिविजुअल है तो उसमें इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, गांधी जी ने ये कहा। तो अगर हम अपनी जिंदगी में इसको धार लें तो हम अपने बच्चों को भी ज्यादा पावर दे सकते हैं, हम और लोगों को भी पावर दे सकते हैं। सरकारों से पावर लेना और देना एक लंबा विषय है,
तो गांधी का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, यू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, सब जगह पे पावर देने की बात हो रही है, पावर लेने की बात नहीं हो रही। तो गांधी जी वुमेन को पावर देना चाहते थे, वीकर सेक्शंस को पावर देना चाहते थे, गांव को पावर देना चाहते थे, एंड दैट इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। इसके अलावा गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा, बट उसका जवाब ये है कि अहिंसा को धारण करके देखिए, अपनी जिंदगी का पार्ट बना के देखिए, तो अहिंसा अभी भी रेलेवेंट है। देन गांधीयन फ्रेम ऑफ एजुकेशन, वो इतना ज्यादा रेलेवेंट है कि अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमारा एजुकेशन के प्रति पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स, वी नो कि एजुकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना नहीं है। एजुकेशन मीन्स टू लिबरेट। किसको लिबरेट करना है, कौन लिबरेट करेगा, कहां फंसे हुए हैं। सो ही टॉक्स अबाउट स्पिरिट एंड बॉडी। एक तरफ स्पिरिट है, एक बॉडी है, दोनों को लिबरेट करना है। सिर्फ माइंड को ही एनरिच नहीं करना, सिर्फ याद कर करके सुनाना ही नहीं है, और कंज्यूमर कल्चर की तरफ नहीं जाना। सो गांधी वाज ए स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई स्टार्टेड विद द कंसेप्ट, ही टॉक्ड अबाउट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आप सब जानते हो कि गांधी जी कम से कम चीजों को कंज्यूम करने के ऊपर बढ़ावा देते थे, और ये आज के लिए गांधीयन फ्रेमवर्क बहुत रेलेवेंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क, जहां पे आपको जबरदस्ती कंज्यूमर बनाया जा रहा है, जब आपको कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदिए, और नहीं भी जरूरत है तो भी खरीद लिए। हैबरमास, मार्कूस, ये सारे क्रिटिकल थिंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट आज अपना सामान बढ़ाने के लिए सबको कंज्यूमर बना रहा है। बट इफ यू गो बैक टू गांधीयन फ्रेमवर्क, तो हमें कंज्यूमरिज्म से दूर बनाया जा रहा है, और हमें कहा जाता है कि आप मटेरियलिस्टिक मत बनो, कम से कम सामान रखो, जितना जरूरत का रखिए और दूसरों को दे दीजिए। सो मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, कि आज का जो कंज्यूमरिस्टिक और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, उसको अगर हम रिव्यू करें फ्रॉम द गांधीयन पर्सपेक्टिव होंगे, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो हम गैजेट्स के पीछे, आईटी की टेक्नोलॉजी के पीछे, आईटी इज गुड, बट जो बच्चे पढ़ते ही नहीं और गूगल से ही सब याद कर करके सुना देते हैं, और बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना चाहते, अपनी डेवलपमेंट नहीं चाहते, तो इधर से उधर से सामान इकट्ठा करते हैं। दे शुड नो द गांधीयन पाथ। And when you talk about the Gandhian path, many are not able to follow, because it's not easy to be following Gandhism. It is easy to talk about Gandhi, it is easy to read about Gandhi, but it is very difficult to live like Gandhi. गांधी जी की तरह जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आसान, कितना आसान है झूठ बोल देना, कितना आसान है चीजों को तोड़ देना, और कितना आसान है इम्पेशेंट हो जाना, कितना आसान है वायलेंट हो जाना, और कितना आसान है अपने को दूसरे से अलग समझना, अपने घर, अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के लिए सब चीजें इकट्ठी कर लेना, ये बड़ा आसान है। तो जो गांधी जी का फ्रेमवर्क है, उसमें अपने से ज्यादा या कम से कम अपने बराबर दूसरों को देने की बात होती है, दूसरों का हित भी सोचने की बात होती है। सो इट इज मोर और लेस स्पिरिचुअल थिंकिंग। तो किसी ने तो ये भी कहा था कि गांधी जी अगर 1000 साल पहले होते तो उनको देवी देवता का दर्जा मिल जाता। तो वी आर लकी दैट वी हैव सीन हिम इन द प्रेजेंट टाइम्स। और गांधी जी जो कह रहे हैं उसमें धर्मों की झलक आती है। हिंदुइज्म में उनका पूरा विश्वास था, और बार बार उन्होंने गीता की चर्चा करी है, राम राज्य की चर्चा करी है, बट ही नेवर टॉक्ड अबाउट एनीथिंग अगेंस्ट द अदर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे कहा गया कि क्वेश्चन थोड़े काम आएंगे। सो आई एम टचिंग द एस्पेक्ट्स विच यू मे हैव इन योर माइंड। एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दूंगा क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल मामला है। वो ये है कि जब तक मूवमेंट नॉन वायलेंट रहती है, किसी सरकार की कोई हिम्मत नहीं है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मूवमेंट को खत्म कर देना। तो ये आज भी नॉन वायलेंस का विचार है जो ट्रेड मूवमेंट्स को,
किसानों की मूवमेंट को, टीचर्स मूवमेंट को, सबको इंस्पायर करता है। और सब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हम नॉन वायलेंट हैं, क्योंकि सबको पता है कि नॉन वायलेंस एक पावर है। सरकार भी कुछ नहीं करती और सबको बताती है कि मैं नॉन वायलेंट, क्योंकि नॉन वायलेंस एक मॉरल एनहेंसमेंट का प्रतीक माना जाता है। जो मॉरली बहुत ऊंचे हैं वही हिंसा नहीं करेंगे। तो कुछ भी हो, अगर वायलेंस नहीं होती तो आप कहीं तक भी जा सकते हो, कुछ भी मनवा सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो दूसरे की बात, अगर नॉन वायलेंट हो। जब नॉन वायलेंट हो जाओगे तो दूसरा आपसे डिफरेंट नहीं लगेगा और दूसरे को ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको दूसरे को समझाना नहीं पड़ेगा। पर दुनिया भर में नॉन वायलेंट मूवमेंट, आप सब जानते हो कि कौन कौन से लोग इंस्पायर हुए गांधी जी से, और कितने, मार्टिन लूथर किंग, टॉल्स्टॉय, विनोबा भावे एंड अदर्स। कुछ ने इनको इन्फ्लुएंस किया, कुछ को गांधी जी ने इन्फ्लुएंस किया। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, पर बहुत लोगों का असर गांधी जी के ऊपर हुआ। गांधी जी ने आगे भी बहुत असर किया लोगों के ऊपर। और गांधीज्म, आप तो फिल्म भी देख सकते हो, आप जानना है कि गांधीज्म अभी यहाँ पॉपुलर है और उसके ऊपर अभी भी डिबेट चलती जा रही है। सो आज 30 जनवरी को हम अफसोस कर रहे हैं कि गांधी जी हमारे बीच नहीं है, बट हमें बहुत खुश होना चाहिए। 150 साल हो गए गांधी जी को, अभी भी गांधी जी के ऊपर चर्चा चलती रही। और हम सब जानते हैं कि जब तक एकेडमिक डिस्कशंस और सोशल पॉलिसी और गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पावर की बातें होंगी तो गांधी जी का अपना एक स्थान है। उनकी थ्योरी, उनके पर्सपेक्टिव को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ उसको पसंद कर सकते हैं, कुछ कम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ ज्यादा कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट विश अवे कि गांधी जी ने जो कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो विद दीज वर्ड्स आई विल ask for any questions if somebody wants to have any comments or questions. Any questions? Any comments? Chaliye, I believe most of you are on the YouTube, so no questions are coming. I'll if I have to summarize the Gandhi's contribution and making us a good person, so हम वो भजन याद कर सकते हैं। वैष्णव जन ते नर कहिए, पीर पराई जाने रे। तो वैष्णव जन वही है जो अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता करते हैं और अपने सत्य के रास्ते के ऊपर चलते रहते हैं। So with these words, I'll like to conclude. Thank you, Madam Asha. Thank you so much, sir. People go, but the ideas live. Truth can be relative as well as absolute. Truth can only be achieved through non-violence. Such have been the ideas expressed by Dr. Manoj Kumar, who has elaborately focused on the relevance of Mahatma Gandhi's philosophy in academic, social, moral, political, and even in our day-to-day life. How relevant is Mahatma Gandhi today? And how Sir has expressed his views and some unknown parts of Mahatma Gandhi, how he has expressed, and how relevant is he in we can see the present programs going on in under the present scenario. Free Panchayati Raj, he talked about Sarvodaya, Sarv Shiksha Abhiyan, trusteeship. So all these are so relevant, and he stressed upon, Dr. Manoj very aptly stressed upon all the aspects and all the programs which are still going on in the present scenario, and how relevant they are today in our present today's world. So Sir has very aptly stressed on the new education policy which is going on, and how Gandhiji stressed upon the use of mother tongue, and what kind of leadership quality
a person needs to have to become a good leader, and how education should be inclusive, morality based, and even differentiating or comparing जो है difference between Marx and Mahatma Gandhi, and how the philosophy of Marx today, because it leads to violence, some kind of violence also. So we can compare that Mahatma Gandhi's philosophy is still continuing because of his non-violence principles, still relevant in our present scenario. So thank you so much, sir, for a very heartfelt tribute to Mahatma Gandhi by underlining his relevance in yesteryears, today, and tomorrow, as well as his unique ways of fighting with peace and non-violence. इसीलिए शायद कहा गया है कि सत्य अहिंसा की मूरत वे चरखा खादी वाला, आजादी के रंग में जिसने जंग को ही रंग डाला. So I think similar ideas have been very aptly expressed by our esteemed expert. Now I would request respected Mr. Sheza sir, the co-convener of the webinar. He is second in command in the department and a guiding force for the whole department. So I would request Sheza sir to kindly extend the vote of thanks. Good afternoon, all of you. I take this opportunity to express our sincere, heartfelt gratitude to our principal, Dr. Sangeeta, her magnanimity, and in support and whatever venture we take up. We look forward to have a more fruitful interaction with ma'am, and the history department will always be indebted to you for guidance and the support that you have rendered to us. We also express gratitude to the dean of the college and the vice principal of the college and for their ever-ready support in whatever ventures we have approached them. I'm also grateful to Dr. Manoj. Yes, sir. Thank you. Also, my friend and colleague. Also, who have taken a lot of effort to deliver us an exhaustive lecture on the relevance of Gandhi from different perspectives. Within a short span of time, he has taken the challenge to deliver this kind of talks, which is both academical as well as train of morality and the concept of truth, all blend into one, and a very analytical and exhaustive lectures that we're really grateful for. I wish all the best in your future venture, Dr. Manoj ji, and I wish that you continue to do this kind of service for the students community as well as for the faculty members. I'm also grateful to the faculty colleagues who have taken pain to be a part and parcel of this program, and to other department, and also the departmental colleagues who have been through this from the beginning to end. Last but not the least, I'm grateful and thankful to the students who have utilized this lecture as an academic ventures and who made this webinar a success by your participation. Even if we have arranged everything, had you not cooperated with us, this would have gone in vain. But your active support and the cooperation that you have rendered for this talk and this program have really made this webinar a grand success. And with this
few words, I would say thank you to all of you. Thank you. Thank you, sir. So now we have come to the completion of this program, and I thank all of you for your kind participation. And we will end this webinar with a very famous bhajan of Mahatma Gandhi. मेरे बच्ची के लिए मुझे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा ना करेगे नीरे निंदा ना करेगे नीरे बाज काज मना निश्चल राखे काच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कही समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे पर स्त्री जेने मातरे जेवा थकी असत न बोले जीवा थकी असत्य न बोले पर धन न बजाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कही
बीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे काम क्रोध निवार्या रे भणे नर संयुतनो दर्शन करता भणे नर संयुतनो दर्शन करता कुल को तेरा तारा रे Whatever your web hosting needs may be, we got you covered. Perhaps you're just starting out and need basic web hosting. Or you're looking for something faster and easily scalable.